Good morning, class. Good morning, ma'am. Class, write your class with strength क्यों कम है? Fine. Today I'll be starting with you people the last topic of chapter 2, that is the difference between serial and parallel codes. So you people already have the basic idea behind the workings and the structure of serial and parallel codes. So I'll be just discussing the next part. A serial port is an interface that is used for connecting the serial lines to fulfill the serial communications. These ports are 9 pin D-shaped connector. This is a form of D shape. अगर ऊपर से देखो नीचे की तरफ this is a D shape. Okay. So connector that connects to the transmission line and is also known as a DB9 connector. Okay. Serial communication by is fulfilled by single wire and only single stream of data is transferred from one end to another. एक वायर का यूज होता है क्यों? क्योंकि एक बिट को ट्रेवल करवाना है. सिंगल डाटा ट्रांसफर डन. Therefore, like parallel transmission and serial transmission, data speed is not a problem. Mismatch. क्योंकि parallel में सबको parallelly they have to reach the other end. The length of the wire can be increased as needed. That is also not a problem. क्योंकि serial data में it can be of one bit that is traveling through the transmission medium. But in case of parallel, the cost also increases on increasing the length of the cable. But जैसे हम बोलते हैं कि the signal deteriorates as it passes through the transmission cable and only to one particular one is the parallel port. Unlike serial port, a parallel port can move a set of 8 bits at a time on 8 different wires. Okay? That's why it is faster in comparison as compared to serial port. Unlike serial port, it uses a 25-pin connector and is called DB25 because it is also a D in shape. DB25 connector, and to eliminate crosstalk and errors, all bit stream need to transfer data at the same speed in parallel communication. That's why the speed is a barrier. The speed is a barrier. ठीक है क्यों? Crosstalk और errors को avoid करने के लिए. But that is impractical. Therefore, for this reason, transmission line are preferred to be short in parallel.
हर बार सेम स्पीड से वो फॉर द होल एंड फ्रॉम सेंटर एंड टू रिसीवर एंड वो ट्रेवल करे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम कहते हैं इनकी वायर्स जो है इन शॉर्ट लेंथ में होती हैं और दे कैन ओनली फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। जैसे वायर की लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो डाटा सेंड मे और मे नॉट बी द सेम एज रिसीव। The parallel ports are typically implemented in zip drives, printers, hard drives, CD-ROMs, etc. The diagram for this is given below. 13 in upper and 12 in the lower row is the structure of a parallel port. 25 pin parallel port. These are the some of the basic differences. Again, if the question is asked from the examination point of view, it will be of 5 marks only, and you can have to attempt 6 to 7 points along with the diagram. A maximum of 6 to 7 points should be there, but the diagram should be there between the two. And what is the difference? The difference is a serial port is used to achieve serial transmission. Obvious, जो कर चुके हो, parallel port is used to achieve parallel transmission. The speed of the serial port is comparatively very low as compared to parallel port, whereas the speed of the parallel port is very high. Okay? In serial port, less number of wires are used, whereas in parallel, more wires are used as compared to serial port. A serial port is capable of delivering single stream of data, one bit of data at a time, whereas a parallel port is capable of delivering multiple streams of data. यानी कि 8 bits of data per second. A serial port send a bit after another bit at a time, while parallel port send multiple bits at once. The same single stream में बात कर दी, then one bit की बात कर दी, 2 points किसी के point से बना दिया, ठीक है। Next, in serial port, male ports are involved, ठीक है। In parallel, female ports are involved. अगर आपने कल ऑब्जर्वेशन की होगी मदरबोर्ड जब मैंने आपको दिखाया था, तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन की तो आपने शायद ध्यान दिया होगा सीरियल पोर्ट पे आपको पिंस विजिबल थे 9 पिन, बट पैरेलल पोर्ट्स में होल्स विजिबल थे 25, ठीक है। तो पिंस ने होल्स में इंसर्ट होना है, तो इसलिए हम इसको बस कैटेगराइज करते हैं कि वेदर एट वन एंड व्हाट काइंड ऑफ पोर्ट इज अवेलेबल। दोनों होंगे जरूर, एक सीरियल कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने मेल फीमेल पोर्ट्स होंगे, बट इन केस ऑफ मदरबोर्ड्स हम कहते हैं मेल पोर्ट्स आर इन्वॉल्व, एंड इन केस ऑफ पैरेलल फीमेल पोर्ट्स आर इन्वॉल्व, जिनको होल पोर्ट्स कहते हैं या जिनको पिन पोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, सीरियल पोर्ट्स आर टिपिकली इंप्लीमेंटेड इन मॉडर्न सिक्योरिटी कैमरास, कंट्रोलर, जिप ड्राइव, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव्स। फाइन, आर द पॉइंट्स क्लियर टू यू पीपल? कोई डाउट? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना, बट द थिंग इज अगर फिर भी आपको इससे भी अच्छा मैटर मिलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे हम कहते हैं ना करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे द थर्ड कैटेगरी, द थर्ड कॉलम फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑफ करेक्टरिस्टिक। किस करेक्टरिस्टिक के ऊपर या किस फीचर के ऊपर यू आर डिफरेंशिएटिंग द टू वैल्यूज। द डिफरेंस कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, लेट इट बी सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, कुछ भी। तो किस बेसिस पे, किस करेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, दैट इज द मेन पार्ट, एंड दैट यू कैन सर्च। ठीक है, यहाँ पे एक थर्ड कॉलम बनाओगे फॉर द करेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स, यहाँ पे लिखोगे क्लिक ट्रांसमिशन कैसी है उसकी, तो देन यू विल बी डिस्कसिंग हाउ द सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट्स डाटा, हाउ द पैरेलल पोर्ट ट्रांसमिट्स इट्स डाटा। ठीक है, देन यू कैन गो फॉर द सेकंड फीचर, दैट इज द स्पीड। व्हाट इज द स्पीड of data in case of serial ports and what is the speed of data in case of parallel ports? ठीक है, वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स, ये जो आपको इस पॉइंट्स में दिख रहा है आप उसी का फीचर बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ चलोगे तो दैट विल बी अ बेटर इंप्रेशन फॉर द एग्जामिनर आल्सो, कि किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करके, किन फीचर्स को कंसीडर करके आपने इनको डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, किसी ने पढ़ने की कोशिश की बुक में से? हैव यू गॉन थ्रू द टॉपिक, एनीवन? किसी ने टॉपिक पढ़ने की कोशिश की आज? मतलब पहले की जब मैंने करवाया, मतलब वो पढ़े हैं कुछ पॉइंट्स कि नहीं, कुछ भी नहीं?
बोलो क्लास। मैम बुक में से नहीं पढ़ा था, वेबसाइट्स में मैम, यही वाली में से देखा था, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के बारे में। फाइन, मैंने वो जरूरी भी नहीं कहा कि बुक ले लिया, ठीक है, बस पढ़ो जरूर टॉपिक को। मतलब आपको हर कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम द बुक और फ्रॉम द इंटरनेट। थ्योरी है, हम्म। यू नीड टू बी अवेयर टाइम टू टाइम। नहीं तो ये आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने पढ़ लिया, मैम ने करवाया तो बस हो गया। पर आपको कुछ नहीं आता होगा। अगर इन शॉर्ट देखो, आपसे वो 3-4 लाइनें इंग्लिश की मार के कहानियां ही लिखोगे, तो दैट विल बी ऑल्सो प्रॉब्लम। हमें उस कहानी को जेन्युइन बनाना है, विथ सम वैल्यूज, विथ सम डेटा, उसके साथ क्या एसोसिएटेड है। जब भी प्रैक्टिकल क्लास के लिए आओगे, आई विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑफ यू पीपल। ये होगा ही होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, सरप्राइज टेस्ट मैंने बोला हुआ है। इट कैन बी ऑफ ओरल फॉर्म, इट कैन बी ऑफ रिटन फॉर्म। एक मैंने कल आपको, मैं भूल ना जाऊं, एक मैंने कल आपको भेजा था वो पार्टिसिपेशन के लिए इन द इंजीनियर्स क्लब। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ना वो हिंदी दिवस के लिए कोई रिस्पॉन्स आया कि मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं एक एक को पकड़ के पूछूं? ये चाहते हो तुम लोग? तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक क्राइटेरिया क्या है पढ़ने का? कहीं भी चले जाओ, हमें ऑलराउंडर बच्चे चाहिए होते हैं। हमें ये नहीं है कि जब पढ़ाई करो पढ़ाई करते रहो। इन एक्टिविटीज में नहीं ध्यान दोगे तो तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी बच्चे। ये माइंड सेटअप रख लो। अगर मैं ये कहूँ चलो मदरबोर्ड है, तुमने आके तुम्हारे सेमिनार भी ले लिया मैंने, तुमने ऑडियंस के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर दिया, क्लास के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि तुम अकेडमिक्स के साथ डील कर रहे हो। और इस क्लास के बच्चों में, क्योंकि अब इतनी बारी तुम्हारी हम लोग मतलब अच्छी भली तुम्हें बातें सुना देते हैं तो तुम्हें असर भी नहीं होता। किसी को 4 बातें कहते हैं ना तो तुम लोग क्या कहते हो कि हाँ कोई बात नहीं, ये बच्चे थे इनको तो पता ही है, मुझे सुनने को मिलती है, एक टीचर ने क्या सुनाया दूसरा भी सुनाता है। तो तुम्हें क्लास के आगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब बूस्टअप हो चुका है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात कही जाए तुम्हारे लिए, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू पीपल। बुरी बात कही जाए तब भी तुम उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके चलते हो। पर इन कामों में अगर आप इन्वॉल्व हो गए, देन द कॉन्फिडेंस फॉर यू पीपल विल बी मोर बूस्टेड। तो ये जरूर करो। मैंने तुम्हें पहले बोला है एसपीए के मार्क्स इसके ऊपर डिपेंड कर जाएंगे, फिर मत कहना कि एसपीए बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोग बस ऐसे ही बैठे रहो और कहो कि हाँ नहीं मुझसे नहीं होता। हिंदी दिवस के लिए एनी नंबर ऑफ एंट्रीज आर एक्सेप्टेड, बट फॉर दैट इंजीनियर्स क्लब ओनली वन पर्सन फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, अगर आपने ध्यान से वो लेटर पढ़ी है, वन पर्सन फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट हैज टू बी सिलेक्टेड। आप ये देखो कि अगर आप उसमें एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कौन होगा जो पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल बी एन ऑनर फॉर यू पीपल कि हमने 120 स्टूडेंट्स में से वो एक बच्चे को निकाला है। ऐसा नहीं है कि बाकी बुरे हैं, बट वी हैव द कॉन्फिडेंस इन दैट पर्सन टू रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंट। मुझे ये एंट्रीज कल नहीं मिली, अगर आज भी नहीं मिलती तो आई विल नॉट कंसिडर योर एसपीए मार्क्स एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत में मैं एसपी के मार्क्स नहीं लगाने वाला। फाइनल ईयर में मार्क्स खुले होते हैं, या पूरा ऊपर जाओगे या पूरा नीचे आओगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं ज्यादातर। थ्योरी सब्जेक्ट्स में हिट एंड ट्राई है। जब प्रैक्टिकल में तुम इतना नहीं स्कोर कर पाए, इतना बुरा हाल डेटा स्ट्रक्चर से हो गया, वरना जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है बहुत स्कोरिंग है अगर आता है तो। उनमें भी बच्चों ने स्ट्रगल किया, जिन्होंने कहा कि हमारा पेपर ही बहुत अच्छा होता, फिर भी वो इतना स्ट्रगल करते उनके मार्क्स के साथ। ये तो है ही थ्योरी सब्जेक्ट, जो मर्जी बनाते रहो, डायग्राम्स मदरबोर्ड को जितने मर्जी बना लो, उससे देखिए एग्जामिनर भी बोर हो चुका है। तो वो कुछ नया चाहता है तुम लोगों से, क्या अच्छा सा तुम कैसे क्रिएट कर रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। सेम कहानी तो वो बहुत बार देख चुका है। मुझे आज के आज 2 बजे तक माइंड सेट कर लो, किसी एक इवेंट में पार्टिसिपेट जरूर करो और मुझे नाम चाहिए। नहीं, आई विल नॉट आस्क यू पीपल आफ्टरवर्ड्स। कोई भी इवेंट में आपका सर्कुलर ग्रुप में डालूंगी ही नहीं फिर। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर में इतना बर्डन फील कर रहे हो, इतना प्रेशराइज फील कर रहे हो ना, अभी कुछ स्टार्ट हुआ, इतना सिलेबस था,
ना कुछ, तो फिर भी पार्टिसिपेशन इसका मतलब तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। मिड ऑफ द सेमेस्टर में तो चलो हम ये कहते हैं ना, बर्डन हो गया, बहुत सारा काम है, असाइनमेंट ये वो बहुत कुछ आ गया, नहीं करना चाहिए हमें, या मेरा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा जा रहा, प्रोजेक्ट में मैं फंस गया, अभी कुछ भी नहीं है, तो ये हाल है तुम लोगों का। नाउ ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास और मदरबोर्ड का डायग्राम बनाओगे सारे। नोटबुक की तरफ कैमरा करो, मदरबोर्ड का डायग्राम बनाओ। आई वांट टू सी कि क्या सीखा तुमने कल मदरबोर्ड से, जल्दी। ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास। क्लास, एम आई ऑडिबल? मैं कह रही कैमरा ऑन करो, यस मैम। ऑन करो सारे। नोटबुक्स की तरफ, नोटबुक्स की तरफ, मुझे तुम लोगों को नहीं देखना, मुझे पता तुम ही बैठे हो, और मदरबोर्ड का डायग्राम बनाओगे। चीटिंग नहीं करनी, देखिए कितना तुम्हें याद है। बाकी भी जिसकी वीडियो ऑन नहीं होगी मैं रिमूव कर दूंगी। मदरबोर्ड के ना हर कंपोनेंट को ढंग से पढ़ना, क्योंकि कई बारी जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही आए। मान लो सीरियल पैरेलल पोर्ट पे आ रहा है, तो वो कोई कंपोनेंट तुम्हें टर्म फॉर्म में पूछ लेता है, 2-2.5 मार्क्स की टर्म होगी, तो उसको जेन्युइनली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट इट बी चिपसेट के ऊपर ही आता है, तो चिपसेट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होना चाहिए। एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर आ जाता है कई बार, अकेला यूएसबी पे आ जाता है। शुभम कनौजिया, राजन जायसवाल, सक्षम, मुदित, सिद्धांशु, अंकुश, ऋतिक, राघव, पूजा। कहना पड़ता मुझे एक एक को। सुखराज स्टार्ट करो। ये वीडियोस क्यों नहीं ऑन हो रही बाकियों की, मुझे ये नहीं समझ आता।
जैस्मिन भूल गए। क्लास मैंने एक आपको बोला था, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पिन। ठीक है, अगर आप बैक पैनल बना रहे हो पिन्स उसमें सही होने चाहिए। अगर आप उसका फ्रंट पैनल भी बना रहे हो, मदरबोर्ड का एग्जैक्ट डायग्राम बना रहे हो, ATX IDE पोर्ट में पिन्स विजिबल होनी चाहिए जहां पे विजिबल हो सकती है। गलत अपने आप डिब्बा सा नहीं बना देना एक, वो जेन्युइन। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम एक बार ये पिन वाला बता दो मैम, जैसे कि एक और आईडी वाला मैम, कौन सा वाला पिन? जो आप कह रहे हो ना मैम अभी की पिन वगैरह मैम, एक बार वो बता दो मैम। बैक पैनल में तुमने कहा नहीं था, बैक पैनल जब बनाना है यहाँ पे PS2 बनाने हैं, तो ये 6 पिन आपको दिखाने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक कट दिखाना है। ये 6 इन काउंटिंग होने चाहिए, ये नहीं कि जितने मर्जी डॉट्स बना दो। अगर यहाँ पे आप सीरियल पोर्ट बना रहे हो तो यहाँ पे 5 पिन होने चाहिए, यहाँ पे 4 पिन होने चाहिए। दैट शुड बी एग्जैक्ट इन नंबर। बैक पैनल तो पूरा करेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि पैरेलल, सीरियल, USB, इनके अलावा और किसी के पिन, BGA के और किसी के पिन भी बनेंगे। फ्रंट पैनल में भी ATX बनेगा। वो ATX ना तुम लोग कहीं क्या करते हो, ऐसे बनाई जा रहे हो। किसी ने 4 बनाई, किसी ने 5 बनाई, किसी ने 10 बना दी। अरे 20 पिन होने चाहिए, काउंट करो, 10 ऊपर 10 नीचे। ऐसे ही जब IDE बनाओगे तो यहाँ पे 40 पिन दिखने चाहिए, 20 ऊपर 20 नीचे। वो कुछ स्पेसिफिक है, पिन के केस में आप गलती नहीं करोगे। और अगर आप यहाँ पे डिम लिख रहे हो स्लॉट, तो ये दोनों डिम है या दोनों सिम है। आप एक को डिम एक को सिम मत करना, डिम और सिम लिख सकते हो, या डिम स्लॉट्स होंगे उस मदरबोर्ड में या सिम, उनकी पोजीशनिंग ये है, हम ये बता रहे हैं। ये नहीं कहना कि दिस इज डिम दिस इज सिम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका ऑप्शन है तो यू विल बी राइटिंग और एक वो पोजीशनिंग गलत ना करो, कोई बैक पैनल अपनी मर्जी से कहीं भी बना रहा है। डायग्राम देखो जो मैंने करवाया था। नहीं रोहन, ये क्या किया आपने बच्चे, ये क्या कर दिया अपनी मर्जी से। बैक पैनल तो ठीक है, USB सीरियल पैरेलल कहाँ है, ये मुझे दिख नहीं रहा। ये भी USB है। ये VGA के ऊपर क्या लिखा आपने, ATX? कहाँ से आ गई ATX यहाँ पे? मैम एक कनेक्टर का नाम भूल गया। एक नहीं, बहुत भूल गए। इधर भी आप पोजीशनिंग अपनी मर्जी से, पावर पोर्ट अपनी मर्जी से, SSD स्लॉट, रोम, वो ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। मदरबोर्ड नंबर नहीं मिलेंगे इसके। पोजीशनिंग आपको फिक्स करनी ही पड़ेगी। गलत है, दोबारा देखो इसको, डायग्राम को। सुधांशु ठीक करो नोटबुक। बनाया ही कुछ नहीं अभी, अभी तो सोच रहा है।
सिमरन बैक पैनल यहाँ नहीं होता, गलत है पोजीशन। उसके बाद सीमोस कहाँ जा रही है? ओके, नॉर्थ ब्रिज, रेस्ट इज फाइन। थोड़ा साइज उसको यूटिलाइज करो ना, पूरी की पूरी जगह को। साटा कहाँ है? एक्सपेंशन स्लॉट्स में पीसीआई पहली आईएस से, लेकिन वो सारी एक्सप्लेन भी होनी चाहिए, याद रखना, उस हिसाब से अटेम्प्ट करना। सुखराज क्या बनाया है? पेन साइड करो, अभी कुछ भी नहीं बनाया हमने। सतबीर नोटबुक दिखाओ। बहुत पहुंच पहुंच कर रहे हो सब लोग। मैंने कहा है तुम्हें कि कल बैक पैनल अलग से बना लो, बीच में ही घुसाई जाओगे। ठीक है, तरीका ये भी, उसकी स्पेस वहां पे आप यूटिलाइज कर रहे हो, पर फिर भी उसको ढंग से बनाओ। पैरेलल भी सही नहीं दिख रहा मुझे तस्वीर, आपका सीरियल भी नहीं दिख रहा। अगर ऐसे बनाना इट विल गो फॉर, यू कैन गो फॉर इट, बट ढंग से। अभी नहीं विजिबल क्लियर। नीट एंड क्लियर डायग्राम होने चाहिए बच्चे, ये नहीं फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि मैंने डायग्राम बनाया, उसके नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है बच्चे, देख लिया मैंने। कुणाल रावत, वीडियो ऑन करो। कुणाल रावत, लीव कर गया। पूजा, वीडियो ऑन करो बच्चे। यहाँ तो तुम लोगों को काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग ना इस क्वेश्चन को तैयार करो, इस चैप्टर को। मैं कल फ्राइडे जिनकी लैब है कल, और मंडे को टेस्ट लूंगी इसका, जो भी ग्रुप मेरे पास आएगा, और ये टेस्ट होगा जरूर। अभी क्या कर रहे हो? अभी नोटबुक दिखाओ। सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं। मैम क्या कर रहे हो? डायग्राम कहाँ है? मैम गलत बन गई पहले, करना ना। कुणाल जसल, हर्ष जसल, बड़ी जल्दी आ गए क्लास में। यस मैम। पहले कहाँ थे? मेरे को काफी देर से दिख नहीं रहे तुम लोग। यस मैम। मैंने कहा क्लास में नहीं थे, अब क्लास खत्म होने वाली है, तो एंटर करके क्लास में। मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अंकुश, वीडियो ऑन करो बच्चे। अंकुश, वीडियो ऑन करो।
मोहित वीडियो ऑन करो। कोई मेरे को ना पढ़ता नहीं दिख रहा क्लास में, बहुत रेयर बच्चे हैं जिन्होंने टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है दोबारा। सिंधु दिखाना मुझे क्या बनाया आपने। नहीं मैम सिंधु ये क्या, विजिबल है? विजिबल तो है लेकिन नहीं, करेक्ट नहीं है, गलत कर रहे हो। मेरा कल वाला लेक्चर एक बार सारे देखोगे, उसमें मैंने डायग्राम बनाया था, उसको एक बार व्यू करोगे, पोजीशनिंग्स को ध्यान दोगे, मुझे वैसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए मुझे। नहीं तो एक बार नेट से भी मदरबोर्ड का डायग्राम देखो। मैं और कल वाला लेक्चर मैडम आपने अपलोड किया है? दिया हुआ मैंने, चैनल आप वही है मेरा। ओके मैडम। बच्चे लाइक दिस यू नीड टू ड्रॉ इस तरीके का ना, विद प्रॉपर लेबलिंग। ये सारी एक्सपेंशन स्लॉट्स चल रही हैं आपकी, देखो उसने साइड पे ऐसे एबीसीडी की फॉर्म में लिख दिया। ऑल डिपेंड्स कैसे आप उसको मीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, हॉच पॉच भी नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम की डिटेल। साइड पे देखो तो सारे लेबलिंग कर दी, ऐसे यू कैन सर्च फॉर द डायग्राम्स, बट द पोजीशनिंग शुड बी करेक्ट। इधर आपको एक्सपेंशन है, इधर डिम सिम है, इधर ये एटीएक्स वगैरह है, ठीक है, वो सारी वैसे ही रहनी है। ऐसे डायग्राम को सर्च करो, नहीं तो कल मेरा वाला लेक्चर ले लो, मैंने सिंपल से डायग्राम आपको करवाया, बस उस पोजीशन के हिसाब से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अपनी मर्जी से ये स्लॉट्स को कहीं कोई ऐसे उसको सीधा कर रहा है स्लॉट को, अरे आपकी मैंने पोजीशन ही फिक्स कर दी थी, आपको कल ये बात समझ में नहीं आई। फॉर्म पेपर यहाँ पे एक होल है, मदरबोर्ड की यहाँ पे होल है, यू नीड टू कंसिडर योर मदरबोर्ड इन दिस मैनर ओनली। यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट है, यहाँ पे मुझे मेमोरी स्लॉट दिखनी ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस एक्सपेंशन को ऐसे हॉरिजॉन्टली मत प्लेस करो, ये वर्टिकली ही है। तो इन चीजों पे आप ध्यान दो थोड़ा। जब आपने उस मदरबोर्ड को पकड़ा था, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स वर्टिकल थी, मेमोरी स्लॉट्स हॉरिजॉन्टल थी, हर चीज में ध्यान दो। एल में देखो साटा कनेक्शन है, तुम अपनी मर्जी से उसको कुछ भी कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, वो ऑर्डर वैसा ही रहना चाहिए। तो ऐसे नेट से सर्च कर लो, तो मेरी वाली वीडियो कल वाली देखो, मैं एक बार फिर भी वीडियो शेयर कर दूंगी, नहीं तो चैनल वही है मेरा, चेक करो। मैं रोज के डेट वाइज लेक्चर डालूंगी इस बार, किस डेट को मैंने क्या लेक्चर लिया उसके डिस्क्रिप्शन में उसके कंटेंट्स हैं, तो यू कैन चेक की लेक्चर। अपने ना डेट डालते रहो ना नोटबुक्स में, इस डेट को मैंने ये करवाया, इस डेट को मैंने ये करवाया, तो दैट विल बी क्लियर टू यू पीपल कि कब आपको रिकॉल करना पड़ जाए उसको, टॉपिक को अगेन। सुखराज ये क्या बनाया बेटा, अपनी मर्जी से, पता नहीं मदरबोर्ड कहाँ जा रहा है।
जितने बच्चे इस वक्त मेरे पास प्रेजेंट हैं मैं सिर्फ उनकी अटेंडेंस ले रही हूँ, जितने मर्जी ने चैट बॉक्स में जो मर्जी लिखा, मुझे कोई मैटर नहीं है। आधे बच्चे लीव कर चुके हैं, तो दैट इज देयर प्रॉब्लम। अब की अटेंडेंस काउंट होगी बस। याद रखना नेक्स्ट क्लास से मैं अटेंडेंस कभी भी इन बिटवीन ले सकती हूँ। शुरू में जो अटेंडेंस हुई है इन बिटवीन भी एक बार होगी, वो अटेंडेंस कंसिडर होगी अगर देयर इज अ वेरिएशन। इनकी फुल फॉर्म्स भी लिखो, जो आप लिख रहे हो ना, पीसीआई स्लॉट डिम, साइड पे इनकी फुल फॉर्म्स लिखो, नेक्स्ट पेज पे लिख लो।